بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق اور میں ہوں سونیا شیخ اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات ہوگی سیلاب کی تباہ کاریوں کی۔ ناظرین، سندھ میں سیلابی ریلے سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ جوہی میں ایف پی بچاؤ بند پر شگاف لگا دیا گیا ہے۔ دادو کے شہر جوہی، مہیڑ اور خیرپور ناتھن شاہ سمیت سینکڑوں دیہات زیر آب آنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ایف پی بچاؤ بند کے دیگر مقامات پر شگاف لگانے سے کمبر شداد کوٹ کے علاقے بھی متاثر ہوئے۔ مسلح افراد نے سیم نہر میں 100 فٹ چوڑا کٹ لگا دیا، جس کی وجہ سے جیکب آباد کے دیہات زیر آب آ رہے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں برسات تھم گئی لیکن سیلابی ریلے تھم نہ سکے۔ بلوچستان سے آنے والا سیلابی ریلا جہاں جہاں سے گزر رہا ہے تباہی مچا رہا ہے۔ دادو کے شہر جوہی میں ایف بی بچاؤ بند پر 50 فٹ چوڑا شگاف لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے جوہی، مہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ نے مہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ کو بچانے کے لیے کالی موری کے قریب جوہی بیراج پر 200 فٹ کا کٹ لگایا ہے، تاہم خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ علاقہ مکینوں نے خطرات کے پیش نظر نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ سیلابی ریلا تیزی سے مختلف علاقوں سے گزر رہا ہے۔ ایف بی بچاؤ بند پر 5 مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے شگاف پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کمبر شداد کوٹ کے مختلف دیہاتوں کو ڈبو رہا ہے۔ کئی دیہاتوں کا شہروں سے زمینی رستہ منقطع ہو گیا ہے۔ کمبر سے وار بین شاہراہ پر 203 فٹ پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ دریائے سندھ نوڈیرو موریا بند کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ 5,60,000 کیوسک سیلابی پانی کا ریلا گزرنے سے قریبی دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ نوڈیرو کیٹی ممتاز کے کچے کے علاقے کے گاؤں میں سیلابی صورتحال سے 100 سے زائد گھر زیر آب آ گئے ہیں۔ جیکب آباد کے قریب بلوچستان کے علاقے محمد پور انتظامیہ نے سیم نہر کو 100 فٹ کا کٹ لگا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیم نہر کو گوٹ ثناء اللہ کھوسو کے مقام پر جیکب آباد کی طرف کٹ لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے جیکب آباد کے آس پاس کے دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ اور ناظرین، سیلاب کی بے رحم موجوں نے غریبوں کی بستیوں کو اجاڑ کر ہر شے کو پانی میں بہا لیا۔ کراچی کے ریلیف کیمپ میں کمبر شہادات کوٹ سے آنے والے خاندانوں پر کیا قیامت بیتی، ہمارے نمائندے وقاص باقر نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا سنا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش اور اس کے بعد سیلابی صورتحال سے کیا قیامت گزری، اس کے کچھ مناظر اور اس کی کچھ روداد یہاں کراچی میں پہنچنے والے ضلع کمبر شہادات کوٹ نصیر آباد کے جو خاندان یہاں پر پہنچے ان کی زبانی جانتے ہیں۔ یہ 70 سالہ خاتون ضلع کمبر شہادات کوٹ کی ہیں، جو کہ جب بارش اور سیلاب نے ان کے علاقوں کو، ان کے کچے گھروں کو آن گھیرا تو یہ اس وقت نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کسی کے پاس روپے پیسے نہیں تھے، کسی کے پاس نکلنے کے اسباب نہیں تھے۔ جس وقت بارش کی وجہ سے ان کے اوپر چھت گری اور اس سر میں بھی چوٹ آئی اور اس وقت ہاتھ میں بھی یہ پہنچی، بڑی مشکل سے کراچی پہنچے۔ کچھ تو اب میں ان سے چونکہ اردو سمجھ نہیں سکتی ہیں، میں ان سے سندھی میں بات کروں گا۔ میں بتائیے کہتا ہوں آیا ہو کیڑے حال میں کیے نکتا ہو، چھاپ حالات ہوئی ہوتے؟ توبہ جو متاں چھت کری نا، وہ برسات گھنی تھی گئی، چھت جو کری تو گیڈر لگو۔ کچھ اور بھی لوگ یہاں پر موجود، آپ بتائیے گا کہ اس وقت کیا قیامت کا منظر تھا، کس طرح کی صورتحال تھی؟ سر، جس ٹائم پہ بارش شروع ہوئی اور جو بارش چل رہی تھی تو قسم خدا کی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت کے منظر تھے۔ ہمارے اب چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے نا گلی میں بھی نہیں گزر رہے تھے، بس یہ قیامت تھی۔ ہم تو توبہ کر رہے تھے، بھائی یہ کیا منظر ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا بھائی۔ نصیر آباد سے آنے والا یہ خاندان جو کہ اس وقت کراچی کے سرکاری اسکول میں کورنگی میں پہنچا تھا، ان سے آپ بتائیے گا کہ کیا وہاں پر صورتحال تھی؟
असांजी पाण ज्यादा गिरी पई असां मां पाण अकेली आई हुयमि अपने मुड़ुस होॾे मुंहिंजा ॿार धारा होॾे असांखे बस ते काले सां निकिरी चऊं असां त ॾाढो ज़ुल्म जवाब बीहे थी वियमि असां छा कयूं ग़रीब माण्हू असां मदद कयूं जेका ॿाहिरि आयो असां चई त किरी पियो नज़राबाद में मींहं जे करे असां पाण आया आहियूं मां नंढड़ो छोकिरो वठी आई आहियां। लोगों के सिर्फ घर नहीं गिरे, मकान तबाह नहीं हो, सामान ही नहीं लुटा, बल्कि खानदान के खानदान इस कयामत खेज बारिश और सैलाबी सूरत हाल में बिछड़ गए हैं। ये खातून सिर्फ अपने एक अकेले बच्चे को लेकर यहाँ कराची पहुँच सकी हैं। इनके शौहर और बच्चे अभी भी कंबर शहदाद कोट के नसीराबाद के इलाके में मौजूद हैं। इन्हें कुछ नहीं पता कि वो किस हाल में हैं और किस जगह पर हैं। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इनके पास इतना किराया नहीं था कि वहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँचते। जब जो लोग अपनी जानें बचाकर भागना भी चाह रहे थे, किसी के पास किराया नहीं था, किसी के पास दुनियावी दीगर असबाब नहीं थे, जिसकी वजह से लोग निकाल नहीं सके वहां से। और हजारों की तादाद में अभी भी खानदान उस बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में और दूर अफ्तादा गांवों में मौजूद हैं। वकास बाकिर अपडेट करने का शुक्रिया। सैलाबी रैलों और बरसाती पानी से सबसे ज्यादा मुतासर कंबर शहदाद कोट के सैकड़ों देहात के मकीनों को सरकारी रिलीफ कैंपों में ठहराया गया है, लेकिन यहाँ भी उनकी हालत निहायत अबतर है। हमारे नुमाइंदे बाबर मेमन इनकी मुतासरीन के दरमियान मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा कि मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है वहाँ पर? जी बिल्कुल, सिंध में जो है सैलाब की सूरत हाल जो है वो अबतर होती जा रही है। लाड़काना में जो है हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 290 जो है इमदादी रिलीफ कैंप्स कायम की गई हैं, जहाँ पे जो है मुतासरीन को जो है वो ठहराया गया है। जो मुख्तलिफ इलाकों से पानी की लपेट में जो है फंसे हुए मुतासरीन तो वो यहाँ पे इमदादी कैंपों में पहुँच कर जो है महफूज मकामात तो उनको मिल गया है, लेकिन इमदादी कोई भी सामान या दीगर राशन खाना समेत जो है मुतासरीन को नहीं मिल रहे। ज़िला इंतज़ामिया या हुकूमती नुमाइंदे तो मुतासरीन को जो है खाना तक फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त एक रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ, तो आप बताइए कि आपको खाना मिला है, आपकी किस चीज की जरूरत है? कंबर शहदाद कोट से आए हैं, गेबी डेरों से। जितने हमारे जमीन भी डूब गई है, गाय भैंसे सारे गए और सारा कुछ हमारा चला गया है, हमारी जगह खत्म हो गई है। इधर जब हमें आए तो कोई नहीं डीसी आ रहा है, नहीं कोई मुख्तार का आ रहा है, नहीं कोई वाशरूम की सहूलत है, नहीं किसी पानी की सहूलत है, नहीं बिजली की सहूलत है। हम तो ये मर रहे हैं, नहीं कोई टेंट मिला है, नहीं हमें कोई राशन मिला है। जी मेरे साथ एक और मुतासरीन साथ है, तो जी भाई आप भी बताइए कि आपको खाना मिला है? जी सर, खाना हमको नहीं मिला है, कभी के टाइम पे नहीं आ रहा है। वो लोग सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं भूख में। हमारा सामान भी उधर खत्म हो गया, अब हम ऐसे ही आ गए। हमको खाने की भी जरूरत है और सर टेंट की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने जो है सैलाब मुतासरीन की बात सुनी, तो उनका यही कहना है कि ना ही ज़िला इंतज़ामिया और ना ही हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे, ना ही हमारी किसी किस्म की मदद की जा रही है, जिससे जो है हमारी मुश्किलात में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सिंध के ज़िला मटियारी के मकीन बरसात की तबाहकारियों से संभल नहीं पाए थे कि सैलाबी रेले ने मज़ीद तबाही मचाना शुरू कर दी है। दरिया सिंध में पुराना हाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होते ही कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए, जिसकी वजह से मुतासरीन बेयार मददगार रिलीफ कैंप्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताएगा कि किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं सैलाब मुतासरीन? जी बिल्कुल, ज़िला मटियारी के मकीन जहां बरसात से परेशान हुए, वहीं सैलाब के बाइस भी इनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं ओल्ड हाला के मकाम पर। दरिया सिंध में ओल्ड हाला के मकाम पर जितने भी कच्चे के इलाके हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। वहाँ के मकीन बड़ी मुश्किल से अपना सामान यहाँ पर जमा करके रिलीफ कैंप में पहुँचे हैं। यहाँ की सूरत हाल में अगर आपको दिखाऊँ तो रिक्कत आमेज़ मनाजिर हैं। लोग यहाँ पर बेयारो मददगार हैं, बेसरो सामानी का आलम है। इनके पास खाने को नहीं है, इनके बर्तन खाने के खाली हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाने को कितना मिलता है? अस्सलाम वालेकुम। खाने के लिए थोड़ा थोड़ा को भी एक टाइम अभी वो भी बंद कर दिया है, बोलते हैं सरकार ने बंद कर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो हम निकले हैं बड़े मुश्किल से निकले, अपने बाल बच्चे के लेके बहुत परेशानी से निकले हैं। हमारा कच्चे वाला इलाका सारा डूब गया है, अचानक पानी आ गया, ऊपर से बरसात, नीचे सैलाब का पानी। हम अपनी जान बहुत मुश्किल से बचा के निकले अपने बच्चों की, और कोई सूबा पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा, कैसे हो कैसे नहीं हो। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। इनका यही कहना है कि अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा है। जो इनको खाना दिया जा रहा था दिन में सिर्फ एक वक्त का, अब वो भी बंद कर दिया है। जो समाजी तंजीमें हैं वो यहाँ पर इनको खाना फराम कर रही हैं। इनका यही मुतालबा है कि इनके तक खाना पहुँचाया जाए, इनके इलाकों से पानी को निकाला जाए ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। जी
ٹھیک ہے وقاص صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، نوشہرہ میں سیلاب درجہ 4 سرکاری ملازم کے گھر کا سب کچھ بہا لے گیا۔ سرکاری ملازم اپنی اہلیہ کے ہمراہ بے سر و سامانی کے عالم میں ایک سرکاری عمارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان کاکا خیر سے۔ ذیشان بتائیے گا کس حال میں ہے درجہ 4 کا یہ ملازم؟ جی بالکل، سیلاب سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ نوشہرہ دوبی گھاٹ کا رہائشی وحید جو ایک کلاس 4 ملازم ہے، اور جب سیلاب آیا تو وہ بے یار و مددگار اپنے گھر سے ایک فارم اٹھا کر جو ہے یہاں پر ایک اسکول میں آیا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور اس وقت نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے، اور نہ ہی کچھ اور بندوبست ہے۔ یہ بتائیں کہ دوبی گھاٹ میں آپ رہ رہے تھے، کیا کیا سامان آپ کا بہ گیا ہے؟ ہمارا جو سامان تھا مطلب جو ہم ساتھ مطلب لاس کر سکتے وہ لیا، اور بقایا جو ہے وہ سب کچھ بس گیا، ختم ہو گیا، اور بس ہمارا کوئی وہ بس مطلب آسرا مسئلہ نہیں ہے، بس ہم بس اللہ کے آسرے ادھر بیٹھے کرایہ کا گھر ہے، اور جو سامان تھا بس وہ تو گیا چلا مطلب ختم ہو گیا، اور 4 میرے بیٹے ہیں وہ بھی بس ادھر ادھر بس مطلب اسی طرح گھوم رہے ہیں۔ جی وحید صاحب سے آپ نے سنا کہ یہ ایک کلاس 4 ملازم ہے، بے یار و مددگار بیٹھے، نہ کھانے کا کوئی بندوبست ہے، نہ کوئی اور ریلیف ان کو دیا گیا ہے، تو ان کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اور حکومت نہ صرف ان کو ریلیف دے بلکہ ان جیسے ہزاروں لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے فوری اقدامات کرے، تاکہ یہ لوگ جو ہے واپس اپنی زندگی بحال کر دے اور اپنی روزمرہ کے معمولات پر آ جائے۔ اس وقت یہ ایک کالج کے بلڈنگ میں موجود ہے اور یہاں پر مقیم ہے۔ جی ذیشان کاکا خیل اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ ملک میں سیلاب کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں، کئی علاقوں میں متاثرین کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ سوات، کالام اور اطراف کے علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، کئی علاقے تباہ ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں گھر برباد ہو گئے۔ ہمارے نمائندے ان علاقوں میں موجود ہیں، تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ سوات میں موجود ہے بلال آفریدی اور ہمیں اپڈیٹ کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے دوسرے نمائندے بھی بلال سے جانیں گے۔ سب سے پہلے بلال بتائے گا سوات میں اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ آج بالکل اس وقت ہم سوات کے علاقے جرے میں موجود ہیں، اور جرے کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو جرے سے کنڈیل جو ایک علاقہ ہے وہاں پر جانے والا جو ایک مرکزی پل تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے، اور سوات اور کنڈیل کے درمیان جو زمینی راستہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جرے سے بحرین اور بحرین سے کالام اور آگے اسی طرح جو علاقے ہیں وہاں پر جو جانے والی جو مرکزی شاہراہ ہے جرے کے مقام پر، یہ بھی جو ہے وہ دریا کے نظر ہو چکی ہے، اور یہ سڑک یہاں پر بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ تو اب انتظامیہ کی جانب سے عارضی طور پر راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو زمینی رابطہ ہے وہ بحال ہو سکے، اور امدادی کاروائیاں جو لوگ ابھی تک سیلاب سے متاثرہ ہیں، جن کے گھر بہہ چکے ہیں، جو متاثرین ہیں سیلاب کے، ان کو جو ہے امداد پہنچائی جا سکے، اس کے لیے تیزی سے کام جاری ہے کہ عارضی طور پر ان سڑکوں کو بحال کیا جا سکے۔ جرے کے مقام پر سینکڑوں گاڑیاں اس وقت، اس میں زیادہ تر تعداد وہ گاڑیاں ہیں جو کہ امداد لے کر جا رہی ہیں ان علاقوں میں، لوگوں کے لیے ریلیف کیمپس تک امداد پہنچا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاء خوردوروش کی سپلائی کی گاڑیاں ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر کھڑی ہے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر فی الفور یہ راستے بحال نہ کیے گئے تو جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر خوراک کی قلت کا جو ہے وہ بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم کوشش کی جا رہی ہے کہ آج کے دن جو ہے اس شاہراہ کو جو ہے وہ بحال کر دیا جائے تاکہ جو ٹریفک کا آمد و رفت ہے، جو زمینی رابطہ ہے وہ بحال ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ سوات کے مختلف علاقوں میں دریا کے کناروں پر جو آبادیاں تھیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں جو ریسٹورنٹس تھے، لوگوں کا روزگار جن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ہزاروں لوگوں کا روزگار جن ریسٹورنٹس کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ سوات سے بلال آفریدی اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ برمنگھم کے کمیونٹی ہال میں ددھیال آزاد کشمیر میں قائم عابد ویلفیئر میموریل اسپتال کے سالانہ فنڈز ریزنگ بارے مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں مخیر خواتین و حضرات، کونسلرز اور عہدیداران نے شرکت کی، جبکہ اہلیان ددھیال نے اس نیک کار خیر میں تعاون کی بھرپور یقین دہانی بھی کروائی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में पिछले 16 सालों से फ्री इलाज मुआलजा की सहूलियत फराहम करने वाले आबिद वेलफेयर मेमोरियल अस्पताल के चैरिटी डिनर के सिलसिला में होने वाले मुशावरती अजलास की सदारत राजा शौकत ने की। राजा रजासब ने कोरोना के दौरान अस्पताल को दरपेश मसाइल और फ्री सहूलियत से मुस्तफीद होने वाले मरीजों पर उठने वाले अखराजात बारे तफसीलात से शुरका को आगाह किया। जो लोग हमारे साथ मुसलसल इस सिलसिले में तामुन अस्पताल के सिलसिले में तामुन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अंदर भी हमारे साथ तामुन करेंगे और हम इंशाल्लाह ये मुसलसल जो हमने शुरू किया हुआ आंख का ऑपरेशन का सिलसिला उसको भी इंशाल्लाह और आगे बढ़ाएंगे और हर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी हम हर 3 महीने के बाद लोगों के गरीब और मुस्तहिक जो लोग हैं उनके फ्री ऑपरेशन करते हैं और इंशाल्लाह अगला भी हमारा जो प्रोग्राम है वो अक्टूबर में है, वो भी फ्री आंखों का आई कैंप लगेगा। अस्पताल मुंतजिमीन ने बताया कि आबिद वेलफेयर मेमोरियल अस्पताल पिछले 16 सालों से गरीबों, नादारों और मुस्तहक लोगों को फ्री इलाज मुहैया कर रहा है। इस मौका पर लैब डैम के लीडर काउंसलर जॉन हेंट, काउंसलर जाकिरुल्लाह चौधरी, काउंसलर बाबर बाज, राजा आतिफ नायब मुगल, मोहम्मद गालिब और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, इंसानियत की खिदमत करना ऐन इबादत है और आबिद अस्पताल को ये क्रेडिट जाता है कि जरूरतमंदों का हाई स्टैंडर्ड बुनियादी इंसानी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए फ्री इलाज के साथ फ्री अद्वियात भी देते हैं। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए राजा शौकत, काउंसलर बाबर बाज, लैब डैम पार्टी बर्मिंघम के लीडर काउंसलर जॉन हेंट, गजनफर और दीगर ने कहा कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और माली इस्तिताअत न होने की वजह से हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। हमें इंसानियत के फलाही मिशन को जारी रखने के लिए बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। तमाम भाइयों का जो इसमें ताउन कर रहे हैं इनका शुक्रिया अदा किया जाए और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो भाई यहाँ पर तशरीफ लाए, ये पहले भी मदद कर रहे हैं और आइंदा आने वाले टाइम में भी हॉस्पिटल के साथ जो है ना इनका तामन जारी रहेगा। I just want to thank Abid Welfare Trust for the invitation this evening, and we've seen the great work that they've been doing over the last 16 years, and this hospital will only continue to grow with the support of the public, and I promise you that we have big plans for this hospital going forward, so please keep on supporting us. Councillor John Hunt, leader of the Liberal Democrats in Birmingham, councillor for Barry Bower Ward. I think it's amazing to be here to see what everybody is doing to raise support and develop this hospital in Kashmir, and the timing, as I said, is very good because it's a few days after the Commonwealth Games, and this really expresses the true spirit of what we want to see. We had an annual dinner for Abid Welfare Hospital, which is obviously it's in Dadial, Siah Road, and I'd just like to say thank you very much for the opportunity to be able to do an eye camp this year, which was in March, and it's a great job that they're actually doing there at the moment, led by Rajasab and Shaukat's team. Support Uncle in his charity work and is doing good, and also we like to say that Uncle is a great person. And hospital has taken a great initiative to serve the millions of people of Dadial Azad Kashmir. Urge everyone to support this great cause. It will help and benefit the poor people in that area. लोगों को अवेयरनेस के लिए किया गया और हम सब लोगों से ये कहते हैं कि हम इस अस्पताल को आपकी मदद से इंशाल्लाह एक अजीम अस्पताल बनाना चाहते हैं। कहाँ के डडियाल के इलाका अंदराल से कोई भी आदमी इस इलाके से बाहर न जाए, गरीब व नस्दार और मुस्तहिक लोगों के लिए ये अस्पताल है इंशाल्लाह। शुरका का कहना था कि डडियाल के लिए आबिद मेमोरियल अस्पताल किसी नेमत से कम नहीं, इसलिए वहाँ के बासियों की खिदमत के लिए तमाम मुखय्यर ख्वातीनों हजरात को इसकी माली इमदाद करनी चाहिए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आपको बताएंगे फ्रांस की मुमताज़ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत जावेद भट्ट के एजाज़ में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कौंसिल की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात वक़ार बाबर मुग़ल की इस रिपोर्ट में। फ्रांस की मुमताज़ सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत जावेद भट्ट के एजाज़ में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कौंसिल की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों ताहिर खान, एजाज फजल, मोहम्मद इदरीस के अलावा हाफिज अदीब मुश्ताक, आसिफ कुरैशी, काजी कामरान, साकिब नज़ीर, मोहम्मद सईद इफ्तिखार पोठी, मलिक फारूक के अलावा दीगर मेहमानों अनवर जावेद मुगल और अरशद भट्ट ने भी शिरकत की। इस मौके पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन वक़ार बाबर मुगल ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही बारे कहा कि ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर इस कुदरती आफत का
मुकाबला करना चाहिए और सहाफ़ी बरादरी को भी चाहिए कि इस कुदरती आफत से होने वाली तबाही के हवाले से लोगों तक मुकम्मल मालूमात पहुँचाएं। इस कुदरती आफत से दर्जनों सहाफ़ी भी मुतासर हुए, जिनकी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल की जानिब से भरपूर मदद की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान जो है बड़े मुश्किल हालात में है और इस वक्त पाकिस्तान में जो एक कुदरती आफत सैलाब की सूरत में जो आई है, तो उसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो है, जो पिसा हुआ तबका है, उनकी फसलें, उनके जो मवेशी और उनके जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर, वो भी सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहे हैं। और हम एक इल्तमास करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि उनको भी चाहिए कि ये जो इशू है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालात देख कर दिल खून के आंसू होता है कि ऐसे हालात में वो लोग ना उनका कोई पुरसान हाल है। मेरी इस वक्त जितने भी बरतानिया में आबाद तारकीन वतन है, उनसे ये अपील है कि मुतासरीन के लिए दिल खोल कर जहाँ तक हो सके उनकी माली जानी जो भी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। जो पाकिस्तानी में सैलाब ज़दगाह में पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, गरीब बहुत ज़्यादा जो ऑलरेडी महंगाई में पिसे हुए थे, ऊपर से खुदाई आफत आ गई और उसमें बहुत ज़्यादा पिस गए हैं। और हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि सारे मिलजुल कर और पाकिस्तान में कुछ चीज़ें इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके, जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ करके हम पाकिस्तान के लिए करेंगे। तमाम बरतानिया में, पेरिस में, तमाम यूरोप में जो लोग हमारे दोस्त भाई रह रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस वक्त तमाम सियासी शक्तियों छोड़कर जो गरीब आवाम हमारी मर रही है सैलाब में, ज़दगान में, उनके माली मदद की जाए। और मैं अपनी तरफ से पूरी आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपका पूरा साथ देंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी जावेद भट्ट और दीगर ने भी सैलाब ज़दगान की मदद की यकीन दहानी करवाई और मुखय्यर हजरात से भरपूर ताउन की अपील की। वक़ार बाबर मुगल, नुमाइंदा 90। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौड़ का कहना है कि सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी और तिजारती मरासिम फ़रोग़ पा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में सऊदी मार्केट में ख़ुद को मनवाया जाए, जिसमें कामयाबी भी मिल रही है। मज़ीद अहवाल उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में नामवर पाकिस्तानी कंपनीज के नुमाइंदों समेत कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात के दौरान सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौड़ का कहना था कि सऊदी अरब के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात के अलावा सरमायाकारी और तिजारती मरासिम तेजी से फ़रोग़ पा रहे हैं। तमाम शोबों में तावन बढ़ रहा है। ताहम हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियों को यहाँ मुतारिफ करवाया जाए, जिससे पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत नताइज मरतब होंगे और हमारे नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज से मनवा सकेंगे। सिफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर अली ताहिर का कहना था, सऊदी अरब में मुकीम कम्युनिटी पाकिस्तान में बेहतर तौर पर सरमायाकारी करके मुख्तलिफ मौक़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए सिफारत खाना हर तरह की मुआवनत कर रहा है। नामवर कारोबारी शख्सियत फहद अली सिद्दीकी का कहना था कि ऐसे वो तमाम सऊदी सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं और गैर मुल्की बड़ी सरमायाकारी के बायस पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। हमारी ये नीयत है कि जो सऊदी बिजनेसेस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसको हम एक ट्रांजिशन उसकी बहुत आसान बनाएं और उस ट्रांजिशन को करते हुए फिर पाकिस्तान का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो हमें हमेशा जो एक गैप आता है, ट्रेड डेफिसिट गैप जिसको कहते हैं, वो फुलफिल होने का तो फिर हमें IMF और हमें राजरान मुल्क के पास कशकोल लेके नहीं जाना पड़ेगा। हमारे ही टैलेंट की वजह से हम बिजनेसेस को ऐसे कनेक्ट कर देंगे कि हमें IMF की फर्दर इंशाल्लाह जरूरत नहीं रहेगी। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब की मार्केट में जगह बनाने के लिए मेहनत करना होगी ताकि इस मार्केट में भी अपनी मसनूआत और हुनर को मनवाया जा सके। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। और नाज़रीन, पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब ने मलेशिया की आवाम को भी अफसरदा कर दिया है। मुसीबत की इस घड़ी में सदाती अवार्ड याफ्ता मलेशिया की मारूफ समाजी शख्सियत के सदर माफिम हाजी मोहम्मद आज़म बिन अब्दुल हमीद एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के ज़ख्म पर मरहम रखने के लिए मैदान में आ गए हैं। उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुल्क गिर फंड रेजिंग मुहिम चलाने का भी ऐलान कर दिया। तफसीलात जावेद रहमान की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब, गैर मामूली बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। लाखों अफराद बेघर, जिंदगी की जमा पूंजी सैलाब में बह के रह गई। सैकड़ों देहात और कब्जे सफाए हस्ती से मिट गए। मुसीबत की इस घड़ी में सदारती अवार्ड याफ्ता मलेशिया की मारूफ समाजी शख्सियत मैपिम के सदर हाजी मोहम्मद आजमी बिन अब्दुल हमीद बार फिर पाकिस्तानी आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए मैदान अमल में आ गए। कोलालमपुर में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी ये तंजीम न सिर्फ मलेशिया बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के साथ मिलकर पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। Let me just convey my condolences to all the families of the victims who have died, and also those who are injured. Our heartfelt feeling of sympathy, and also we join their sadness together. We feel the pain of these victims the same that we are feeling. We are feeling the same shock, and that is why MAPIM do not waste any time. उन्होंने 92 न्यूज पाकिस्तान को दावत दी कि वो मीडिया पार्टनर्स की हैसियत से अजीम कार खैर में उनके शाना बशाना चले। We are inviting 92 TV92 as a partner. We want to make this news, this effort from MAPIM as a global effort, not only the regional part. Then we are hoping that Channel 92 will be part of this campaign. We hope that we can campaign throughout the world. हाजी मोहम्मद आजमी बिन अब्दुल हमीद और इंचार्ज इंटरनेशनल रिसर्च अफेयर अब्दुल मोईस का कहना था कि मुल्क भर की तमाम मसाजिद में पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए हर नमाज के बाद खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। So we pray, and I've already mobilized the whole of the masjid in Malaysia to do a special prayer tonight, and the coming khutbah also to mention about our brothers and sisters in Pakistan. So this is effort that we are now initiating. We hope the whole world will join MAPIM in this effort, and will continue to support, and we will coordinate this effort immediately to Pakistan. We are Malaysian, are very sad for what happened in Pakistan, the flood disaster. So I appeal all Malaysian to join MAPIM and 92 News to help a flood victim in Pakistan. हाजी मोहम्मद आजमी बिन अब्दुल हमीद कि वो बहुत जल्द इमदादी सामान के साथ मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों और फैमिलीज के दरमियान मौजूद होंगे। इस हवाले से वो पाकिस्तानी हाई कमीशन कोलालमपुर से भी मुसलसल राबिते में हैं। More than 30 million people are homeless in Pakistan due to tragic floods, recent floods. Shelters they do not have, food they really do not have, medicines, innocent children, families are on the roadside. Please join MAPIM and Chegu Azmi to support these flood victims, these innocent victims. I appeal people throughout the world, come forward and join MAPIM. With my camera team, 92 News, Javedur Rahman, Kuala Lumpur, Malaysia. बेलारूस में पाकिस्तानी आमों की धूम, मिन्स्क में सजा पाकिस्तानी आमों का मेला। सिफारत खाना पाकिस्तान मिन्स्क ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से मिन्स्क के वर्डाना शॉपिंग मॉल में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया है। मजीद अहवाल शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में देखिए। सिफारत खाना पाकिस्तान मिन्स्क ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से मिन्स्क के बर्डाना शॉपिंग मॉल में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत बेलारूसी शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल में पाकिस्तानी आमों के स्टॉल्स लगाए गए, जहां पर शुरका को आम के क्यूब्स, मैंगो मिल्क शेक्स और आमों की मुख्तलिफ इकसाम पेश की गई। पाकिस्तानी आमों के मीठे जायके को शुरका ने बेहद पसंद किया। मैंगो फेस्टिवल में तकरीबन 4000 अफराद ने आम के स्टॉल्स का दौरा किया और शुरका की जानिब से फेस्टिवल की जबरदस्त पजीराई की गई। पाकिस्तानी आम बेलारूस में फलों के दरामद कुनिंदगान और ग्रोसरी चेन के नुमाइंदों को भी फराहम किए गए। शाहिद घुमन, 92 न्यूज, रूस। ओवरसीज पाकिस्तानी हर मुश्किल में अपने हम वतनों के साथ खड़े होते हैं। ज़ल्ज़ला हो, सैलाब आए या कोई और आफत, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हमेशा बढ़ चढ़ कर अपने हम वतनों की न सिर्फ मदद की बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर इन दुखों का मदावा भी किया। इस हवाले से शाहिद अहमद रिपोर्ट करेंगे।
वतन अजीज में सैलाब की तबाहकारियों ने जहां तबाही मचा दी है, वहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस फिक्र में मुब्तला कर रखा है कि वो किस तरह से अपने दुखी, गमजदा और तकलीफ में डूबे बहन भाइयों की मदद करें। इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो मुतासरीन सैलाब के साथ हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब आया उससे पाकिस्तान में कितनी तबाहकारियाँ हुई हैं, तकरीबन 2 सूबे जो हैं मुकम्मल तौर पे ज़ेर ताब हैं। हमारी जो भी पाकिस्तान की उधर जितने लोग हैं बेचारे इस वक्त मुश्किलात में हैं। हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जितना भी हो सके हिस्सा डालें। इतना बड़ा सैलाब जो कि पूरे पाकिस्तान की मैक्सिमम कम्युनिटी जो आबादी है जनाब उसको ले गया और इतनी तबाही आई है कि अभी तो वो कैमरे भी नहीं दिखा पा रहे। तो मैं इस मौके पे अपील करूंगा ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि वो बाहर निकले, उनका साथ दें। जो दीगर ममालिक या गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद तो लेट आती है, इस वक्त उन्हें फ़ौरन ज़रूरत है, राशन की, हर चीज़ की उनको ज़रूरत है। इस नाजुक मौका पे हमेशा जो है वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनका चूँकि दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा धड़कता भी है और मोहब्बत करते हैं। और हमेशा चाहे वो डैम का हो, चाहे वो सैलाब का हो, चाहे किसी तरह की, चाहे वो कोरोना जैसी मोहलक बीमारी में जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, तो ओवरसीज़ ने हमेशा अपना दिल खोल के वहाँ पे खिदमत की है। सैलाब के लिए पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए हैं और मैं अपील करता हूँ हर फर्द वाहद से कि सब अपने सैलाबज़दगान जितने भी हैं उनकी हेल्प की जाए। इस दुख की घड़ी में अपने बहसीत पाकिस्तानी अपने सब पाकिस्तानी भाइयों का साथ दें और इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें। और यही हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इस मामले को सीरियस लें और उनके लिए मदद के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएँ। हम अपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात भूल कर पाकिस्तान में सैलाबज़दगान की मदद कर भी रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह और भरपूर तरीके से करेंगे। 7 समंदर पार बसने वाले बढ़ चढ़कर न सिर्फ इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं बल्कि अपने जानने वालों, दोस्त अहबाब और मुख्तलिफ तंजीमात और मुख्तलिफ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इमदाद जमा करके पाकिस्तान भिजवाने के काम में लगे हैं ताकि दुख की इस घड़ी में परेशान हाल अपने हमवतनों की मदद की जा सके। शाहिद अहमद, शाहिद 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।